We are delighted to introduce the makers of modern Dalit history. This session is presented by Dainik Bhaskar. Guru Prakash Paswan and Sudarshan Ramabhadrans, makers of modern Dalit history, features the inspiring accounts of individuals who battled the divisive, discriminatory forces of caste, their forms of protest, activism, social reform, and legacy in contemporary India. It is a definitive volume on pioneering Dalit thinkers and activists of past and present, including B.R. Ambedkar, Babu Jagjeevan Ram, Guru Ram Jashuva, K.R. Narayan, Soya Rarabai, and Rani Jhalkari Bai. Badri Narayan's Republic of Hindutva, How the Sangh is Reshaping Indian Democracy, is an extensive study of the strategy, social work, and reconstruction of Hindutva forces and their work to mobilize Dalits, tribals, and other marginalized communities. In conversation with Rahul Pandita, Guru Prakash Paswan and Badri Narayan come together to commemorate the history of Dalit politics and those extraordinary Dalit thinkers, writers, and activists who shaped it. Hi. Good evening, ladies and gentlemen. We'll try to keep it as interesting as possible, especially in the light of the recent election results in Uttar Pradesh. So I'll begin this discussion with a small anecdote from a book event which happened in the British Council in Delhi roughly about 20 years ago. It was a novel written by a famous author and a journalist. And somehow during the discussion over that book, there was a discussion about social mobility. And from there, the discussions were towards Dalits. And somehow, somebody from the audience asked a question. And he said, how many of the people sitting here, and it was basically the who is who of the Delhi intelligentsia. In the last 6-7 years, we have some names for them on social media. Sometimes they're called the Lutyens gang or the Khan Market gang. मैं प्रयत्न करूंगा कि हिंदी में भी बात करें. अब अंग्रेजी और हिंदी में मिक्स बात करेंगे. तो बात हो रही थी, there was a conversation about Dalits, and somebody in the audience asked a question. He said, how many among the audience has had a meal at a Dalit household? There are only 2 hands which raised. I don't remember the one hand, but the other hand belonged to a famous police officer, KPS Gill. Now somehow there is this grudge among academics and journalists and political activists who work on ground, that somehow the narrative around Dalits is still manufactured by the people or the successors of the people who were present at the British Council about 20 years ago. And it is from these echo chambers in Delhi and Mumbai that they decide what is good, the combination of understanding of people for villages and towns. Now, I have 2 friends here who have, their whole scholarly work is based against this narrative. They are scholars who actually work on the ground. They do not belong to any echo chamber. They are people who have their ear on ground and they know what they are talking about. As a journalist, I have specifically benefited a lot from my conversations, lots of them, with Professor Badri Narayan. And Guru is a young friend. I've known him for several years. His PhD dissertation is on the Article 370. But his line of work, especially his recent book,
on the makers of modern Dalit history. That is something which also keeps him engaged. So I want to begin with you, Guru, because the theme of this discussion, stemmed from your book. Why do we need Dalit history in the first place? And how do we need it? Thank you so much, Rahulji, for that initial remarks. It is a matter of great honor for me personally to be on the same stage with two very senior people, the two gentlemen I have widely read, followed their works, and have immensely benefited from it. I'll start from your initial remark that you made. So, yesterday, on a social visit in one of the institutions in Jaipur, there was an interesting conversation about caste. And the gentleman, he said, there is no casteism in Rajasthan. Rajasthan में जातिवाद नहीं है. I took a pause. I told him, sir, Jawaharlal Nehru Marg se nikaliye. Sari ki sari building, your hostels are divided on the lines of caste. There is a Jat Chhatravas, there is a Rajputana Chhatravas, there is a X Chhatravas, there is a Y Chhatravas. There is no casteism in Rajasthan. Aren't you aware of the NCRB data on caste? Rajasthan tops the list, unfortunately, in terms of crimes against Dalits. And there is no casteism in Rajasthan? Excuse me? ये बात हम सबके मन में स्पष्ट होनी चाहिए. देश में, समाज में जातिवाद है या नहीं? अब जंगल में, in a jungle, the hunting is happening. The hunter says that hunting is no longer happening. जंगल में शिकार बोल रहा है कि शिकार बंद हो गया है. शिकारी जब बोलेगा उस दिन मैं मानूंगा कि शिकार बंद हो गया है. मेघवाल समाज के लोग, भील समाज के लोग, जाटव समाज के लोग अगर ये बोलेंगे कि देश में जातिवाद नहीं है, उस दिन मैं मानूंगा कि देश में जातिवाद नहीं है. We don't need to fall into that trap. It's a slippery slope. तो ये समझने की हमें आवश्यकता है. How sensitive we are, how caste conscious we are. It's time we turn the searchlight inwards. अपने अंदर समाज में आत्ममंथन करने की आवश्यकता है. But coming back to your question, Rahul ji. So we started, and I'll be failing in my duties if I don't mention the name of my dear friend, my brother, co-author, Sudarshan. We together started this experiment in 2016. So we wrote an article to commemorate the life and the times of the chief architect of our constitution, Baba Saheb Ambedkar. We wrote an article on April 14th, 2016. And in that article, we explored the different facets, the different dimensions, the different layers of the personality of Baba Saheb Ambedkar. Unfortunately, my friends, how do we remember Baba Saheb Ambedkar? Unfortunately, ये दुर्भाग्य है इस देश का. ये दुर्भाग्य है हम सबका. बाबा साहेब यानी कौन? वंचितों के नेता. बाबा साहेब यानी कौन? दलितों के नेता. Aren't we aware of his phenomenal contribution as an economist? Shouldn't we be aware of his contribution as a sociologist, as a foreign policy visionary? बाबा साहेब अम्बेडकर ने तब के प्रधानमंत्री नेहरू जी को सावधान किया था. तिब्बत को बफर स्टेट के रूप में रखिए, तिब्बत पे अपना ध्यान रखिए. Should we forget that? Should we discount his foreign policy visionary connotation? No, we are not going to do that. I'm not going to comment on the intention of the authors of our history. Post-independence, लोगों ने इतिहास लेखन किया है. लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को फुटनोट में रखा. क्या जानबूझकर के उनको एक समाज का नेता मात्र बताया गया? उनके अलग अलग पक्षों को हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया. So that article which we wrote, along with Sudarshan, we together wrote, it received a massive feedback, a very brilliant feedback that you should write more about it. Then we started writing more such icons from the marginalized communities. हाशिए के समाज के जो लोग हैं, जो हाशिए के समाज के लोग हैं, उनके आइकॉन्स को आइडेंटिफाई करना, because my friends, we must understand that these icons create inspiration.
समाज में जो महापुरुष हैं, महानायक हैं, नायिकाएं हैं, how many of you remember that in the first Constituent Assembly there was a Dalit woman from Kerala? You are all enlightened audience here, my friends, young friends, senior scholars. Can you give me the name of the first Dalit woman from the Constituent Assembly? संविधान सभा में पहली दलित महिला कौन थी? कोई बता सकता है यहाँ पे? दुर्भाग्य है। केरल की दाक्षायणी वेलायुधन। So it's time we do that introspection. So our exercise, the makers of modern Dalit history, it's a quest, it's the search of those unsung heroes who made such remarkable contribution in terms of our culture, civilization and nation. Thank you so much, Rahul. Bhadreji, I'll come to you now because, I wanted to understand from you, how has the political engagement with Dalits changed in the last few years, especially in the light of the recent UP election results? Because I think there will be a lot of interest to understand how this churning has really happened in the last few years. Actually, I was prepared to talk about the Dalit history. I was mentally prepared to talk about the Dalit history, but you have shifted the discourse on the politics. We can come back to that. No, okay, that's fine. But That's I think fine. there's a Yes. lot of interest in what has happened recently. Actually, in People this want to UP understand. election, there are two things which we need to read. एक कास्ट सेशन की पॉलिटिक्स जो उभरी थी इस चुनाव के बीच में, वो फेल कर गई, वो जगह नहीं बना पाई, दैट कुडंट मेक प्लेस। दूसरा जो था वो ये था कि बीजेपी के तमाम जो अपोजिशन के नैरेटिव थे वो सारे फेल कर गए और बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत ली, पहले जीत से कम। और सबसे बड़ी बात है कि दलित और मार्जिनल कम्युनिटी के बीच बीजेपी को अच्छी संख्या में वोट मिले और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि बीएसपी जो बहुजन समाज की पार्टी है, दलित पार्टी है, वो उसको एक सीट आए, जो कि एक बहुत बड़े बेस वोट के साथ काम करती है उत्तर प्रदेश में। तो ये कैसे हुआ? ये एक मिरेकल है। ये कैसे हुआ? मिरेकल है उनके लिए जो नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए एक सोशल टेक्स्ट है। हम जब फील्ड में काम कर रहे थे 2000 के आसपास, 2000 के आसपास, तो हमने देखा कि गाँवों में संघ के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग दलित समूहों के बीच काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं 3 तरह से: एक शिक्षा, स्वास्थ्य और डिग्निटी को सम्मान, अस्मिता को सम्मान। अस्मिता को सम्मान, काशीराम जी कहते थे कि भाई रोटी तो हम लोग कमा के खा लेते हैं, लेकिन सम्मान की हमें ज़रूरत है। और सम्मान के लिए क्या? हिस्ट्री। सम्मान के लिए ज़रूरी है इतिहास। जिस समुदाय के पास इतिहास नहीं है वो अपनी अस्मिता बना ही नहीं सकता। कांट मेक द आइडेंटिटी, फॉर दैट यू नीड हिस्ट्री। एंड काशीराम इन्वेंटेड द हिस्ट्री। आप समझिए, आप कल्पना करिए, जिस कम्युनिटी के पास अपने हीरोज नहीं थे, नायक नहीं थे और नायक के फेस नहीं थे, यानी वो नायक होगा तो उसका चेहरा कैसा होगा। यानी काशीराम जी ने जब बिजली पासी का किला इन्वेंट किया तो ये हुआ कि इसका कैलेंडर कैसे, इसका स्टैचू कैसे बनाया जाए, स्टैचू बनाना था। तो जो कल्चर मिनिस्ट्री का ऑफिसर उस काम में लगा हुआ था, उसने उस काम को कहा कि हम कैसे करें साहब। तो उन्होंने कहा कि पंजाब के जो 5 गुरु हैं इनके कैलेंडर ले आओ। वो ले आओ, वो ले आया। कहा इनका चेहरा ले लो, इनका धड़ ले लो, इनका हाथ ले लो और एक कोलाज बनाओ। और उस पेंटर ने बनाया और उससे बिजली पासी का स्टैचू बना। यानी आप कल्पना करिए कितना बड़ा स्ट्रगल है जिस कम्युनिटी के पास पहले तो नायक का नैरेटिव का इमेज, और फिर तब उसके स्टैचू, तब उसकी पॉलिटिक्स। तो ये काशीराम जी ने इन्वेंट किया था। और बीजेपी ने, संघ ने बहुत इंटरेस्टिंगली जिन नायकों को बहुजन मूवमेंट ने खोजा था, उन्हीं नायकों को लेकर के संघ के लोगों ने एक जो सोशल कैंपेन है दलितों को डिग्निटी देने का, क्योंकि काशीराम जी के बाद बीएसपी उन कामों को छोड़ चुकी थी, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो एक तो ये था जिसके कारण संघ के उन कामों के कारण बीजेपी को एक आधार मिला जिन आधार पर वो वहाँ काम कर सकती थी। दूसरा, इस बार आपने देखा होगा कि हर स्टेट अपना बेनिफिशियरी बनाता है। कांग्रेस ने भी बनाया था ये नरेगा के माध्यम से।
बहुत सारी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके माध्यम से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा ह्यूज जो बेनिफिशियरी कम्युनिटी पैदा किया है। मैं कहता हूं कि बेनिफिशियरी तो सब बनाते हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, उस कम्युनिटी को एक कॉन्शसनेस, बेनिफिशियरी कॉन्शसनेस में तब्दील कर दिया। हाउ दे डिड दैट? दे मेड ए कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद द बेनिफिशियरीज, constant follow-up, and throughout that follow-up, they converted them in a vote, in a conscious community who can vote for the BJP and who voted for the BJP. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो दैट इज़ अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन। तो ये जो जादू आपको दिख रहा है, इसमें दो की बड़ी भूमिका है, एक बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस की, दूसरा मोदी का जो अपना ट्रस्ट वोट है, ट्रस्ट वैल्यू है, एक ट्रस्ट कैपिटल है, विच यानी लोग उन पर विश्वास करते हैं। आपको पता होगा कि तीसरे फेज तक ये इलेक्शन योगी मोदी वर्सेस अखिलेश था। तीसरे फेज के बाद जब मोदी ने इलेक्शन को पिकअप किया तो मोदी योगी वर्सेस अखिलेश हो गया। मोदी केम ऑन द फर्स्ट। मोदी ने बहुत सारे उसमें बहुत मिरेकुलस असर डाला है। तो ये दो बहुत बड़ा परिणाम है। और तीसरा सुरक्षा का जो क्या नोशन से एक जो क्वाइट पोलराइजेशन हुआ, एक शांत किस्म का पोलराइजेशन। इस बार समाजवादी पार्टी के वोटर्स वोकल बहुत थे और बीजेपी के वोटर्स साइलेंट बहुत थे। एक क्वाइट पोलराइजेशन हुआ और दैट गेव द विक्ट्री टू बीजेपी। Before I go back to Guru, Badriji, I wanted you to elaborate a little on this. We've talked in the past about how the Sangh Parivar, the larger umbrella of the Sangh Parivar, has owned up OBC icons like Marimai, Suhail Dev. How has this silent transformation really worked on ground? Because you do a lot of field work in these areas. Tell us a little bit more about how this experiment has worked on ground and how they've done it actually. How many of you know सुहल देव? सुहल देव के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? सुहल देव एक आइकॉन थे दलितों के, भर कम्युनिटी के शासक थे। पासी और राजभर दोनों ही उस पर क्लेम करते हैं। संघ इस पर यानी गांव-गांव में जो मीटिंग्स होती थी उनके जिसको कहते हैं सामाजिक समरसता कैंपेन, उसमें जो नैरेटिव होता था वो इन नायकों के आसपास होता था। और संघ इस पर 2000 के आसपास से काम कर रहा था। और बीजेपी ने 2014 में अमित शाह ने एक ट्रेन शुरू किया 14 या 15 में, जिसका नाम रखा सुहल देव एक्सप्रेस, और वहाँ पे स्टैचू बनाने का काम शुरू हुआ। यानी आप देखिए संघ रिसोर्स क्रिएट करता है और उस रिसोर्स को बाद में बीजेपी पॉलिटिक्स में आती है, और वो बहुत समय भी लगता है, कई बार 15 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। बट संघ ने, अच्छा अब आप कह सकते हैं कि भाई संघ तो मोस्टली जो कहा जाता है कि जो अपर कास्ट यानी एक परसेप्शन है कि भाई ये तो ऊंची जाति के लोग ज़्यादा इसमें सक्रिय होते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं गाँव में तो कैसे वो काम करते हैं कि दलित समुदाय उनके साथ जुड़ जाता है। तो प्रचारक जो होता है, अभी इधर आपने देखा होगा संघ के प्रोफाइल में बहुत चेंज आया है, और प्रचारकों में ओबीसी और दलित जातियों के बहुत सारे प्रचारक आए हैं। बहुत सारे प्रांत प्रचारक आपको दलित जातियों के मिलेंगे, ओबीसी जातियों के मिलेंगे। तो एक बड़ा शिफ्ट है संघ के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। और जब उनके थ्रू मैसेज जाता है उन तक, और जब वो मैसेज जाता है तो मैसेज कहानी के माध्यम से जाता है, सॉन्ग्स के माध्यम से जाता है। यानी मैं कहता हूँ कि जो हमारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन के सॉन्ग ट्रेडिशन को अपनाया। यानी भजन, आपने देखा होगा क्रिश्चियन चर्चों में भजन होता है, और संघ ने कथा ट्रेडिशन को अपनाया। और कथा आपको पता है बहुत पावरफुल होती है गाँव में, लोग कथा शक्ति। तो वो ये जो स्टोरीज़ हैं इन नायकों के, इन स्टोरीज़ ने बहुत बड़े असर डाले उन समूहों को जोड़ने में, क्योंकि उनसे एक तो डिग्निटी मिलती है, दूसरा नैरेटिव मिलता है, तीसरा नायक मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है। आइडेंटिटी हमने ये किया देश के लिए सुहल देव ने इतने समय पहले मुस्लिम आक्रांताओं को मारा या उनको हराया, या हमने ये किया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारी इतनी बड़ी भूमिका थी। तो ये कैसे होगा जब तक आपके पास हिस्ट्री नहीं होगी। मैंने देखा है कि दलितों में दो वही जातियाँ जो आगे बढ़ती हैं, दोज हू आर बीइंग bit developed, they can evolve their history, they can evolve their नायक। उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियाँ हैं, जिनमें से अभी 4 या 5 के पास ही कास्ट हिस्ट्री है, बहुतों के पास अभी कास्ट हिस्ट्री है ही नहीं।
है उनके ओरल ट्रेडिशन में है, लेकिन वो लिखा नहीं गया है। तो लिखने की शक्ति उन्हीं कम्युनिटी के पास आती है जो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और तब वो अपनी हिस्ट्री अपने ओरल ट्रेडिशन से निकाल के उसको लिखता है, और लिख के फिर उसको आइडेंटिटी असर्शन का एक सोर्स में तब्दील करता है। तो ये हुआ है, और संघ ने इसके साथ अपने को जोड़ा है अपने सामाजिक समरसता कैंपेन में, और जोड़ करके उनको जगह दी है। अंबेडकर की तमाम तस्वीरें आपको दिखेंगी, हर संघ ऑफिस में, कार्यालय में आपको अंबेडकर की तस्वीरें दिख जाएंगी। बड़े बड़े आयोजनों में अंबेडकर होते हैं उनके, ये सारे नायक आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं। झलकारी बाई दिख जाएंगी, मरी माई, अभी तो मोदी जी मरी माई के मंदिर में गए थे, वो एक गॉडेस लोकल डीटी हैं। तो मैं कहता हूँ कि कितने नेता जानते होंगे मरी माई के बारे में, लेकिन तो कहीं से तो एक इन्वेंशन, कहीं से तो एक जनता के साथ एक कनेक्ट है ना, और एक कनेक्ट थ्रू सिम्बल्स, थ्रू आइकॉन, थ्रू इमेजेस, और वो दैट बिकम वेरी पावरफुल इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो नॉट ओनली डिलीवरिंग द राशन, ऑल्सो डिलीवरिंग द डिग्निटी, एंड डिग्निटी थ्रू हिस्ट्री, यानी डिलीवरी ऑफ हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एज मच एज इम्पॉर्टेंट द वे राशन इज इम्पॉर्टेंट। तो ये सिर्फ राशन बांटने का मामला नहीं है, राशन के साथ हिस्ट्री देने का भी मामला है। गुरु, ये ओनिंग अप की जो बद्री जी ने बात की, जो कल्चरल आइकन्स हैं दलित समाज के, उनको ओन अप करना, उनको एक सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल करना, विच इज़ डन वंडर्स फॉर द भारतीय जनता पार्टी, एटलीस्ट इन उत्तर प्रदेश. बट देयर इज ऑल्सो दिस एलिगेशन दैट all of these icons have also been kind of appropriated by the larger Sangha Parivar. As someone who has dealt with this as a scholar, how do you respond to that allegation? No, I think that's a very interesting question. But you see, to look at it with the prism of the emerging Dalit narrative, अब वर्तमान में आज हम जिस दौर में हैं, आज दलित समाज की, दलित युवाओं की आकांक्षा क्या है? What are the aspirations of the new Dalit? That's what we keep saying. सत्ता, संपत्ति और सम्मान लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे. What used to be the optics of yesterday, till very recently, and which has been practiced by many political parties, co-dining. I had a friend who used to say, अरे हमारे दादा तो इन सब में नहीं मानते थे, वो तो साथ बैठते थे. मैंने कहा, एहसान करते थे? एक मनुष्य से मनुष्य जैसा व्यवहार करते थे, एहसान करते थे. सहभोज, सह स्नान, को डाइनिंग और को बेदिंग से बात नहीं बनने वाली है. आप उनके यहाँ जाकर के भोजन करेंगे और कहेंगे कि सामाजिक न्याय स्थापित हो गया है. उनको अपने यहाँ बुलाइए और उनका जूठा अपने यहाँ गिराइए, उस दिन मैं मानूंगा कि समाज में सामाजिक न्याय आ गया है. See, Rahul, the point is not that. The point is, with the passing decades, we have seen there is an evolution of the aspirations of Dalits. Unfortunately, in the course of last 7 decades, you'll be surprised to know, there has not been a single scheduled caste cabinet secretary in the country which is the topmost position for an IAS officer. There has not been a single foreign secretary which is the topmost position of Indian foreign services. You look at the data. कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने वाइस चांसलर्स हैं? तो सत्ता, संपत्ति और सम्मान में it's no longer about symbolism. It's about the share in the structures of power and representation. आज हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों की तुलना में, and picking up from where Badri ji left, that's the reason people who have been doing this politics of social justice, सामाजिक न्याय के नाम पे जिन लोगों ने राजनीति की है पिछले 20 वर्षों में, वो या तो लालू जी हों. अब लालू जी के सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या? तेजस्वी तेज प्रताप मीसा भारती. मुलायम जी के सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या? शिवपाल राम गोपाल अखिलेश. साउथ में कौन है? स्टालिन, कनिमोई. अरे भाई, ये कब तक आप परिवारवाद चला रहे हो? इज इट अ डेमोक्रेसी और अ डिनेस्टोक्रेसी व्हिच वी आर रनिंग इन द कंट्री? तो
Point is not that. And that's the fundamental problem. Mayawati ji, Behan ji started on a good note. Kanshi Ram ji had a vision. He had a mission. But unfortunately, and when I go on television for debates, I ask them, where is the second generation of leadership? दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व कहां से आएगा? And in this context, it becomes important to go back to our history. I ask you another question, friends. So we have been celebrating the 50 years of the 1971 war. 1971 की लड़ाई जो कि एक अभूतपूर्व विजय भारत के लिए. During the 1971 war that led to the creation of Bangladesh, who was the defense minister of our country? Can someone tell me? Couple of you know that. But rightfully so, the credit is given to Indira Gandhi as she led it. But unfortunately, we are not aware of the remarkable contributions made by Babu Jagjeevan Ram. Babu Jagjeevan Ram is another case in point. बिहार से आते हैं. He is someone who has tirelessly worked for social integration. Why shouldn't he be remembered? He is someone who played a stellar role in the war of 1971. और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हेनरी किसिंजर साहब का मानना है, ऐसा गैरी बास का मानना है. गैरी बास has written a book, The Blood Telegram, on the war of 1971. Mr. Gary Bass was stationed in Dhaka US Consulate. So go back and read that. Babu Jagjeevan Ram ji has the place in Limca Book of World Records with the highest number of election victories. His career in parliament was undefeated for 10 occasions. जो लोग राजनीति में समझते हैं कि एक चुनाव लड़ना और जीतना कितना कठिन होता है, उस व्यक्ति का 50 वर्ष का संसदीय जीवन काल रहा, but we don't know him. So this is where the problem starts. If you look at the Dalit narrative with this lens, अब patronization से बात नहीं बनेगी. So how do I put it? In the course of last 8 decades, the first generation of Dalit struggle was of sitting, साथ बैठने की लड़ाई थी. The second generation of Dalit struggle was eating, साथ में भोजन की लड़ाई थी. लेकिन आज जो लड़ाई है वो विटिंग की लड़ाई है, WITTING. हम साथ में बैठ करके निर्णय लेंगे और ये देश चला सकते हैं. तो sitting, eating and witting. So today this narrative has undergone a fundamental transformation, and that's why it's important that we go back to our history and ask newer questions. Thank you, Rahul. बद्री जी, गुरु ने दलित एस्पिरेशन की बात की. The socialist parties or the leftist parties so far have only been able to look at this from a Brahmanical prism. From your experience, from your field work, do you think we need to have a relook at Dalit aspirations? जो नई पीढ़ी है दलित्स की, वो अपनी पुरानी पीढ़ियों से मुख्तलिफ सोचती है, उनकी एस्पिरेशंस क्या है, और क्या वो किसी तरह ये जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह वोट बट रहा है, क्या उसमें कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है? देखिए, सी माई ऑब्जर्वेशन इज दैट फॉर्म्स ऑफ द एस्पिरेशंस आर चेंज बट द कंटेंट ऑफ एस्पिरेशन आर द सेम. इज्जत की लड़ाई पहले से थी, यानी एक जब आप गाँव में आज 1940s में जब कोई किसी दलित को मारता था, तब भी इज्जत की लड़ाई थी और इज्जत की बात वो करता था, भले रोते हुए करता हो. आज भी वो इज्जत की बात करता है, आज वो सोशल मीडिया पर करता है, आज उसके पास स्मार्टफोन है जिस पर वो बात करता है. तो इज्जत सम्मान, और जब इज्जत इन ऑल स्फेयर, जब इज्जत आएगा तो वो बैठने में भी रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपके खाने में भी रिफ्लेक्ट करेगा और आपके शेयर ऑफ द पावर में भी रिफ्लेक्ट करेगा. डिग्निटी इन द शेयर ऑफ पावर ऑल्सो इट विल रिफ्लेक्ट. सो द थ्रेड इज इज्जत, सम्मान, जिसको कि अलग अलग भाषा में अलग अलग बात कहते हैं लोग. तो एक तो ये है. दूसरा जो BSP में जो आप एस्पिरेशंस एंड का जो कंटेंट फॉर्म का फ़र्क, BSP इन उत्तर प्रदेश understand this aspirations
इवन अंडर द लीडरशिप ऑफ मायावती पुरानी हो चुकी हैं, 70s की हो गई हैं 70s में, बट सी अंडरस्टैंड दैट एस्पिरेशन। बट क्या है, वो फॉर्म नहीं है उनके पास, वो नए फॉर्म में बात कहने को महत्व नहीं देती हैं, उसकी शक्ति नहीं समझती हैं। दैट व्हाट बीजेपी डिड, बीजेपी ने उस नए फॉर्म को समझा है और उस नए फॉर्म में उस कंटेंट को जगह दी है जो कंटेंट एक कांस्टेंट एस्पिरेशन है दलित एंड मार्जिनल कम्युनिटी का, एंड दैट इज द एस्पिरेशन ऑफ डिग्निटी, एंड डिग्निटी थ्रू नॉट ओनली थ्रू रोटी एंड पावर। डिग्निटी, आइडेंटिटी डिग्निटी बहुत तरह से बनती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वी वर वर्किंग इन द फील्ड इन बुंदेलखंड अमंग मार्जिनल कम्युनिटी, and they were mostly, they came from the tribal areas, Dalit and tribals, and they have made their small bastis around the highways, and they came with their DTs, मतलब वो आ गए, साथ में उनकी DT भी आ गई है, और वो DT का उन्होंने अपने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी छोटी वो बना दी है जगह, और उस पर धग्गे लटका दिए हैं, लाल काले जो कपड़े होते हैं। एंड एवरी कम्युनिटी इन दोज विलेजेस हैव, यानी मार्जिनल कम्युनिटी के जो बस्तियाँ हैं, द एस्पिरेशन इज़ इनका एक बड़ा मंदिर बन जाए, जैसे शिव जी का मंदिर बगल के गांव में, ठाकुर साहब के गांव में बना हुआ है। तो दे हैव एस्पिरेशन कि इनका एक बड़ी मंदिर बन जाए। आपने जयापुरा एक गांव है बनारस के पास, मोदी जी हैज अडॉप्टेड दैट विलेज, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ एक मंदिर है जिसमें शिव हैं और शिव के साथ सबरी हैं। तो मुसहर लोग कहते हैं कि 50 कोस में सबरी का मंदिर नहीं था, पहली बार हमें हमारी DT का मंदिर मिला है। तो मंदिर के थ्रू भी डिग्निटी आप दे सकते हैं और ले सकते हैं, ये हमारी सेकुलर पॉलिटिक्स और सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स सोच ही नहीं पाती है। और उन एरियाज़ में क्या है, संघ के लोग चंदा कलेक्ट करके उन मंदिरों को बनाने में मदद कर रहे हैं। तो दैट ए बिग शिफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग द दलित एस्पिरेशन। तो दलित एस्पिरेशन सिर्फ ये नहीं है कि लंदन जाके हम PhD करें और सुटेड बूटेड रहें, वो भी है, और साथ साथ ये भी है कि हमारे गाँव में हमारी मंदिर भी, हमारी DT का मंदिर भी बने, जैसे शिव जी का मंदिर है। और आपको पता होगा जब मायावती ने ये स्टैचूज बनाए थे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, तो बहुत बवाल हुआ था, मीडिया में आपने सुना होगा, बहुत गालियाँ उनको मिली थी। लेकिन हम लोगों ने सर्वे किया था उस समय, जो लोग वहाँ आ रहे थे उनसे हम लोग इंटरव्यूज़ करते थे। मोस्टली दे वर दलित्स, दोज हू यूज्ड टू कम टू दैट पार्क, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि हमारा सीना चौड़ा हो गया है। पहली बार लखनऊ, देश के उत्तर प्रदेश की राजधानी में अम्बेडकर की स्टैचू बनी है, तो नायकर की स्टैचू बनी है, सावित्रीबाई फूले की स्टैचू बनी है। तो आप सोचिए वो कितना बड़ा आइडेंटिटी, ये एस्पिरेशन मेरा कहना है कांस्टेंट है, फॉर्म्स अलग हैं, और इसको बहुजन पॉलिटिक्स जहाँ तक ले गई थी, उसके बाद संघ ने उसको वहाँ से पिकअप किया है और अपने फॉर्म में बीजेपी पॉलिटिक्स ने उसको अपने में जगह दी है। इसको कोई किसी भी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, बट दैट्स द कंटिन्यूम। वो सेंस ऑफ प्राइड आपको कभी पॉलिटिकल रैलीज में भी मिलता है, जब मायावती किसी पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए किसी इलेक्शन रैली को संबोधित करने के लिए आती हैं, और कई बार वो हेलीकॉप्टर में आती है। तो हमने ये पाया है कि जब वो हेलीकॉप्टर से उतरती हैं तो एक स्पेशली महिलाओं में, दलित महिलाओं में, जो वहाँ पर उनको सुनने के लिए मौजूद रहती हैं, उनमें एक बहुत ही एक सेंस ऑफ प्राइड आता है कि ये हमारी बेटी है जो एक हेलीकॉप्टर से उतरी है, और ये बहन जी है हमारी। लेकिन बद्री जी, मैं गुरु के पास फिर आऊँगा। व्हाई हैज़ द ऑपोजिशन फेल्ड टू अंडरस्टैंड दिस? इसके पीछे क्या कारण है? स्पेशली BSP जो खुद एक दलित पार्टी है, बहन जी एक ऐसी नेता है जिनको कांशीराम ने खुद पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी, वो ये सब समझने में असमर्थ क्यों हुई? देखिए, ऐसा नहीं है कि समझने में असमर्थ हुई, वो समझती हैं, लेकिन होता क्या है कि ये जो पार्टीज़ बनती हैं, बहुजन किसी भी बड़े सोशल मूवमेंट से खड़ी होती हैं, वो एक समय के बाद एक ख़ास तरह की हेजमनी की शिकार हो जाती हैं, और उसमें एक कम्युनिटी जो उसको लीड करता है, जो लीडिंग कम्युनिटी होता है, जिसके पास नंबर ज़्यादा होते हैं, जिसके पास कैपेसिटी टू डू पॉलिटिक्स आ जाती है, पॉलिटिक्स का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, वो उसका एक कोर वोट हो जाती है। वो फिर अपनी तरह से उस पूरे प्रोसेस को प्रभावित करने लगती है, और फिर अदर्स का रिप्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को वो बाधित करती है, जिसको शकिंग होल हम कहते हैं, जो कि औरों की, जैसे उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियाँ हैं, जिसमें से सिर्फ 4 या 5 को विजिबिलिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी दलित जातियों का नाम आप जानते हैं, मैं पूछता हूं, हर यूनिवर्सिटी में पूछता हूं अपने भाषणों में, 4-5 से ज़्यादा कोई नहीं जानता है।
4-5 से ज़्यादा किसी को याद नहीं है, चमार, पासी, धोबी, कोरी, एक आध और उसके बाद किसी को याद नहीं है। तो ये वो सारी जातियाँ अभी इनविजिबल, उनको मैं कहता हूँ इनविजिबल दलित्स हैं, एंड दे आर इन सर्च ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड देयर पार्टिसिपेशन इन पावर, देयर डिग्निटी। और मायावती उसको एड्रेस नहीं कर पाई, और वो 7-8% एक बड़ी कम्युनिटी जो फटा हुआ वोट जिसको हम कहते हैं इस बार, यानी कोर वोट तो हमारा फिक्स है, लेकिन वो जो फटा हुआ वोट है वो चला गया कहीं और, क्योंकि उसको अपने में जगह नहीं दे पाए, एंड दैट्स द फेल्योर ऑफ द बीएसपी मूवमेंट। एंड द समाजवादी पार्टी हु वाज लीडिंग द अपोजिशन नैरेटिव इन उत्तर प्रदेश, उसके पास तो इसकी कोई समझदारी भी नहीं है और इसकी शायद अभी कंसर्न भी नहीं है उस तरह से, तो वो वहाँ इसलिए फेल कर गई। एमबीसीज में क्योंकि होता क्या है कि आप जब खुद ही एक डोमिनेंट कम्युनिटी में बदल जाते हो पॉलिटिक्स में, तो आप अदर के बारे में इंसेंसिटिव हो जाते हो, इवन यू वांट द वोट ऑफ दोज कम्युनिटी, लेकिन वो कम्युनिटी सोचती कैसे है आप उसको एड्रेस नहीं करना चाहते हो। जैसे पति पत्नी को नहीं, घरों में होता है ना कि पत्नी को कि क्या चाहते हैं, पति को उससे मतलब नहीं है उसको अपने काम से मतलब है। तो वोट तो चाहिए लेकिन उसका एस्पिरेशंस की आपको चिंता नहीं है। तो बीजेपी इन दैट वे इट्स वेरी ने अपनी एक ख़ास तरह से इंटरेक्शंस के थ्रू एक इनपुट के माध्यम से उनसे अप्रोच करती रही है, और ये पार्टीज़ ये नहीं कर पाई हैं, ये फ़र्क है। Guru, I'll come back to you. We have a little time left. You are a young politician yourself. What do you think is the way forward for Dalit politics? I think after बाबा साहेब, हम जब दलित पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कई बार हम साउथ को कम्प्लीटली भूल जाते हैं। बाबा साहेब के बाद ऐसा कोई, कांशीराम जी थे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा बड़ा ऑल इंडिया एक कोई आइकन दलित समाज ने नहीं दिया जो पूरे इंडिया में एक्सेप्टेबल हो। ऐसा क्यों हुआ है, एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड इन दलित पॉलिटिक्स? नहीं, धन्यवाद राहुल जी। अब देखिए, यही तो समस्या है। अब दलित बोलना चाहता है, राहुल जी बोलने नहीं दे रहे हैं लेकिन आए हैं तो, और ये दिस इज सबकॉन्शियस। समाज ने सुना है, समाज ने सहा है, और पिछले 7 दशकों में यही दुर्भाग्य रहा है कि बिहाफिज्म, दिस पॉलिटिक्स ऑफ बिहाफिज्म, महिलाओं के बिहाफ पे पुरुष बात करेंगे, दलितों के बिहाफ पे दलित विमर्श चल रहा है, और दलित कहाँ है भाई? स्त्री विमर्श चल रहा है, स्त्री कहाँ है भाई? अब मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री में भी, इन लाइटर वेन, मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री में भी गुरु प्रकाश पासवान कम बोले, राहुल पंडिता जी ज्यादा बोले, बद्रीनारायण तिवारी जी ज्यादा बोले। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, बट ये हमारे अनकॉन्शियस में है, और इस अनकॉन्शियस से ही लड़ाई है। और हर जगह मैं बोलता हूं, हर पार्टियों में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, और दिस इज लाइक आई सेड, वी डोंट डू इट कॉन्शियसली। भाई, जहां दलित विमर्श की बात होगी, दलित डिस्कोर्स की बात होगी, दलित नैरेटिव की बात होगी। मैं आज सुबह, दिस मॉर्निंग आई वॉज विद रेफ्यूजीज ऑफ पाकिस्तान, एंड अनफॉर्चुनेटली यू वुड बी सरप्राइज टू नो, पाकिस्तान में जो लोग हमारे बचे हैं, उन 1 करोड़ की संख्या में से 95 लाख 95% दलित समाज के लोग हैं। मेघवाल, भील, कोली, धोबी, जाटव, and they are missing in the narrative. You raised a very valid point. सर ने भी बोला, there is a community in छत्तीसगढ़, रामनामी समाज। रामनामी समाज को बोला कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। उस समाज ने क्या किया? उस समाज ने अपने पूरे शरीर पे राम नाम का टैटू करवा लिया। आप बोले आप मंदिर नहीं जाने देंगे, हम इसको अपना मंदिर बना लेंगे। कोई रोकेगा क्या? कोई रोकेगा? अब कोई रोकने वाला नहीं। अब आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उनका सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान बनता है, तो ये चेतना है, ये कॉन्शियसनेस है, कि रियलाइजेशन है that all the institutions, be it political institution, bureaucratic institution, you have to include them, and not just for the sake of symbolism, but for real time representation, decision making, निर्णायक भूमिकाओं में आपको स्थान देना पड़ेगा।
तमाम ऐसे संघर्ष चल रहे हैं, अलग अलग नैरेटिव्स चलते हैं। हमारे यहाँ छठ पूजा होती है, छठ पूजा में सूर्य की उपासना होती है और मैक्सिमम जो लोग छठ पूजा करते हैं वो दलित समाज के होते हैं। कावड़ यात्रा के बारे में आप जानते हैं। सो लाइक राहुल जी सेड, द क्वेश्चन इज अबाउट asserting yourself. How do you assert yourself and how do you articulate? आज Sorry, we have run out of time. 10 seconds. Okay, 10 seconds. आज दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, DICCI इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन। माइक वाले नहीं बोलना देना चाहते हैं क्या? कहिए तो शांत हो जाते हैं। नहीं, आप बोलिए, पर डिक्की just take your time. DICCI, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दे आर, अब चेंबर ऑफ कॉमर्स तो सबके लिए था, फिक्की था, CII था, एसोचैम था, दलित बिजनेसमैन के लिए भी एक ऐसा डिक्की चेंबर ऑफ कॉमर्स खुला है। एंड यू बी सरप्राइज्ड टू नो देयर आर मोर देन 10,000 शेड्यूल्ड कास्ट एंटरप्रेन्योर्स। उसमें से कुछ लोग ऐसे जिनका टर्नओवर 1,000 करोड़ से अधिक है। आज एक तबका दलितों का ऐसा भी है जो बोल रहा है कि बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स, हम नौकरी देने वाले बनेंगे, नौकरी मांगने वाले नहीं बनेंगे। So there are many layers of narrative. We'll obviously. Guru, I'll have to stop you here. There's no Brahminical conspiracy behind it. But I have to leave it open for the audience now. Mike, up, please. मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि अपना आंसर ब्रीफ रखिए ताकि बाकी सबको भी मौका मिले. I'll come to you. Thank you. Sir, there is two questions. No, one question, please. Okay. So, when we talk about Dalit history, basically, and also in the stage today, can we think about overall the struggle? Can we talk about history without politics? And the question started with Professor Badri today. Recent elections are real examples of it. And the second question is consecutive to it. When it comes to politics, again, there are multiple forces that are attached, and the recent example is the struggle of Ramvilas Paswan and his brother about who will represent and all. So the representation in itself to the struggle is also a question. We got your question. Badriji, would you like to respond to that? Who is this question meant for? This is for Professor Badri. Okay. Okay, you gentlemen there. पीछे. हाँ, 3-4 सवाल पूछ लेते हैं. I'll come. हेलो, मेरा सवाल दोनों पैनलिस्ट से है कि आपने बोला मंदिर बनाने से और मूर्तियां बनाने से डिग्निटी मिलती है। कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना का क्या रोल हो सकता है दलितों को डिग्निटी वापस दिलाने में? यहाँ इनको माइक दीजिए प्लीज. सर, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, when they introduced the reservation system and everything, and they wanted to bring the lower caste and Dalits to the main strata and everything to uplift them and all, what was their goal? Did they want the equality, or as a nation also I wanted to ask that we should become a casteless society, because as the years are progressing, the assertions of caste are becoming even more and more. You know, everyone wants to identify themselves with their respective caste. So as a goal of our nation, should we not just become a casteless society so that, you know, there is no question of we get your discrimination? Badri, please. तो हाँ, संक्षेप, हाँ, 3 सवाल के बाद फिर अपन लोग और ले लेते हैं. We'll see if we have time. We'll get back. देखिए, जो अभी प्रश्न था, द क्वेश्चन वाज अबाउट हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स. हिस्ट्री एज ए पॉजिटिविस्ट कॉन्स्ट्रक्ट एक चीज़ है, और वैसे हिस्ट्री खड़ी होनी चाहिए. बट हिस्ट्री मोस्टली इज़ गाइडेड बाय द पावर एंड द स्टेट एंड द पॉलिटिक्स. हिस्ट्री बहुत वनरेबल डिसिप्लिन है. इसमें पॉलिटिक्स का बहुत असर होता है. जो पावर में होता है वो अपने तरह से हिस्ट्री को के रचना को प्रभावित करता है. बट छूट ये देनी चाहिए कि जो पावरलेस है उसकी जब हिस्ट्री बन रही होती है तो वो एम्पावरमेंट में मदद करती है, और जो डोमिनेंट की हिस्ट्री बन रही होती है वो पावर के इम्पोजिशन में हेजमनी क्रिएट करने में मदद करती है. लेकिन एक समय के बाद ये भी वही करेगी, ये भी समझ लीजिए. और आज मुझे इस बात का दुख हुआ, और मैं कहना चाहता हूँ आपके सामने, द वे गुरु रिएक्टेड
यानी आप बोलिए, यू टेक ऑल द टाइम, आई एम मुझे इन्वाइट किया इसलिए मैं आया, बट डोंट कॉल दिस तिवारी एंड द पंडिता, नो आई एम नॉट। आपने उस किताब में मेरे काशीराम की किताब को लिया है, मैंने पहली बार काशीराम की बायोग्राफी लिखी, किसी दलित ने नहीं लिखी है। ये बात मैं औरों से कहता हूँ, लेकिन आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आप कहेंगे, तो मुझे इस बात का दुख है, क्योंकि इम्पैथी पर का रिसर्च का एक अपना डोमेन है, उसको छूट देनी चाहिए। अगर हम नहीं रिसर्च किए होते तो आइकॉन्स आपके सामने आए भी नहीं होते, जिस पर आपके साथ जो टेक्स्ट आ गए हैं, जिसको आप रिफ़र कर रहे हैं, तो एक पॉलिटिक्स खड़ी हुई थी जिसको हमने डॉक्यूमेंट किया था उस समय अपनी किताबों में। तो मुझे लगता है कि ये बातें औरों को कहने दीजिए, बट इफ़ यू आर सेंसिटिव दलित लीडर इमर्जिंग लाइक दैट एंड यू आर इन अ पार्टी हु इज़ टॉकिंग इन ए डिफरेंट लैंग्वेज, तो आप थोड़ा ऐसी बातें कहने से बचिए। ये आपको भविष्य में आगे बहुत जाना है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद के साथ ये बात कह रहा हूँ। One more question, please. Hello. Yeah. So my question is to Mr. Guru. So you said, as we know, you said about Satta, Samman and Sammiti. So हमें रिजर्वेशन पता है कि एजुकेशन सिस्टम में है और वो ज़रूरी भी है बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। बट सर जब ये सत्ता की बात आती है जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, हर जने को एक वैल्यू और एक वोट है, तो फिर लेजिस्लेचर में आपको रिजर्वेशन क्यों चाहिए सर? Ma'am, sorry, there's no time. We can take it up outside. नहीं देखिए, एट द वेरी आउटसेट लेट मी मेक दिस क्लैरिफिकेशन। मैंने अपने रिमार्क्स की शुरुआत में कहा था कि मैं सर के टेक्स्ट को पढ़ के बड़ा हुआ हूँ और कहीं से भी ऐसा कोई संकेत नहीं था, कहीं से भी ऐसा कोई संकेत नहीं था। निश्चित रूप से जो आपने कहा है, आपने दलित डिस्कोर्स की नई वोकैबुलरी बनाई है और इसके लिए मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि ताली बजा के सर का अभिनंदन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सर हुआ क्या है, हुआ ये है कि हज़ारों वर्षों के अत्याचार से मन में बहुत कुछ भरा रहता तो कभी कभी निकल के आ जाता है। अपनी ईमानदार के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ अपनी ईमानदारी के लिए। और सर अपना रास्ता, अपना मार्ग सर स्वयं तय करेंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे और बना रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं जानता हूँ। टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय दिस जेंटलमैन, देखिए लेजिस्लेचर्स में रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है, और अक्सर ये प्रश्न खड़ा किया जाता है। There is a narrative that Baba Saheb Ambedkar gave reservation for only 10 years. I would like to request you to go back and check that. He mentioned that only in the cases of reservation for the parliament seats and the assembly constituencies. और आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहाँ तो आरक्षण से हमारे लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुँचते हैं, लेकिन कभी एक बार स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करिएगा कि अपर हाउस, राज्यसभा और विधान परिषद में कितने पहुँचते हैं, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद। Thank you. That's all we have time for. Both Guru and Badriji will be signing books. If you have any books to sign, please go there. आप सवाल भी वहाँ जाकर पूछ सकते हैं अलग से. Let's leave this out. Thank you, Mr. Guru Prakash Paswan, Badri Narayan ji, and Rahul Pandita.